Hello viewers, today we are going to discuss the character sketch of Sherlock Holmes. As I told you in my previous video in which I had discussed the character sketch of author's grandmother from the story The Portrait of a Lady. Now this Sherlock Holmes is one of the character, or you can say protagonist, in the story Trouble in Bohemia. So as I told you in the previous video that how to write or discuss or draw the character sketch. First introduce the character in a line, and then 5 keywords you have to decide, define, and you have to just explain that simply. Okay, so let us solve the answer. Sherlock Holmes is the protagonist in the story, having the following qualities. Protagonist means the one who is the lead character, or who is the first character which is introduced in the story. Okay, so Sherlock Holmes is the protagonist in the story having the following qualities. Now the 5 qualities which we are going to consider, let us see which those are. So the qualities are: number 1, intelligent; number 2, famous detective; third, respect for challenger; fourth, needs a good friend; last but not least, an artist. These are the 5 characteristics considering which we are going to discuss the character sketch of Sherlock Holmes. Dear viewers, if you can mention more than these qualities or characteristics of Sherlock Holmes, please write it in the comment box and let me know what other qualities or characteristics other than these 5 you see in Sherlock Holmes. So let us now discuss one after one. Let us take first quality which states that he was intelligent. He at once recognized the King of Bohemia, who himself was pretending to represent a second person during his visit to Sherlock Holmes, seeking help in getting the letters and photograph back. His intelligence can be seen that he very easily, means the King of Bohemia, when he went for the help to this person Sherlock Holmes, he at once recognized the King of Bohemia, who himself was pretending to represent a second person during his visit to Sherlock Holmes, seeking help in getting the letters and photographs back. At once मतलब एकदम से, है ना, ये at once जो आया है जिसका मतलब होता है चुटकी बजा के. He at once recognized the King of Bohemia. Recognized का मतलब होता है पहचान लेना. किसको? The King of Bohemia. King of Bohemia को, who himself was pretending, एक वर्ड आया यहाँ पे pretending, मतलब who was in disguise. जो ये pretend कर रहा था उसने जाते ही कहा नहीं कि मैं राजा हूँ, किंग हूँ. He was pretending to represent a second person. वो कोई दूसरा व्यक्ति खुद को बता रहा था जो रिप्रेजेंट कर रहा है किंग ऑफ बोहेमिया को. During his visit to Sherlock Holmes, seeking help in getting the letters and photographs back. तो इससे ये पता चलता है कि शेरलॉक होम्स इंटेलिजेंट था. सेकेंड, फेमस डिटेक्टिव. He was a famous detective, as the King of Bohemia hires him to get himself out of the trouble. Also, Irene Adler had been told that the king would probably go to Sherlock Holmes for help in getting the photograph.
मतलब ये बहुत ही फेमस डिटेक्टिव का मतलब होता है प्रसिद्ध जासूस डिटेक्टिव। उसकी प्रसिद्धि इसी बात से सिद्ध होती है कि जो किंग ऑफ बोहेमिया था वो जब ट्रबल में आया, जिसके कारण टाइटल भी इसका जो है वो ट्रबल इन बोहेमिया है, द ट्रबल इन बोहेमिया है ना। जब राजा पर कोई संकट है तो उस देश पर संकट है। तो उसकी प्रसिद्धि इसी से पता चलती है कि राजा जब किसी डिटेक्टिव को हायर करने की सोचता है अपने खुद को ट्रबल से बाहर निकालने के लिए, तो उसकी प्रसिद्धि कितनी है कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ही इज़ अ फेमस डिटेक्टिव निश्चित रूप से। ऑल्सो आयरिन एडलर, एक जगह पर स्टोरी में आयरिन एडलर खुद ये कहती है, जब वो लेटर लास्ट में लिखती है उसमें, कि मुझे ये कहा गया था, बताया गया था कि जो किंग है वुड प्रोबेबली गो टू शेरलॉक होम्स फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। मुझे पहले से ये बताया गया था कि राजा हो ना हो ये लेटर्स और फोटोग्राफ्स वापस लेने के लिए निश्चित रूप से शेरलॉक होम्स को कांटेक्ट करेंगे। मतलब देखो हर जगह चर्चे थे शेरलॉक होम्स के इतने ज़बरदस्त। तो निश्चित रूप से ये सेकंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ही वॉज अ फेमस डिटेक्टिव। थर्ड, रेस्पेक्ट फॉर चैलेंजर। चैलेंजर किसको कहा जाता है? जो किसी को चैलेंज करे। तो ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा फेमस था इसका मतलब इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, है ना। लेकिन अपने लाइफ टाइम में इसको एक चैलेंजर जो मिला, या हम कह लें मिली, वो थी आयरन एडलर। उसके प्रति उसका ज़बरदस्त रिस्पेक्ट था। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है कि अपना जो प्रतिद्वंदी है उसके प्रति भी सम्मान रखना, रिस्पेक्ट रखना, ये आसान काम नहीं है, जो शेरलॉक होम्स में था। आयरन एडलर had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes. आयरन एडलर जो है had been one of the few persons, जो थोड़े बहुत जो लोग थे, मुट्ठी भर आप कह लो, या जिसको उंगलियों पर गिना जा सकता है आराम से, उनमें से एक थी आयरन एडलर, who had proven to, जिसने ये सिद्ध किया था, कर चुकी थी वो, कि वो उतनी ही क्लेवर थी जितनी कि शेरलॉक होम्स था। उससे मतलब बिल्कुल शेरलॉक होम्स से आप कह सकते हो कि एक कदम आगे ही थी वो। शी वॉज एन आउटस्टैंडिंग चैलेंजर, वहाँ एक ज़बरदस्त चैलेंजर थी। व्हेनेवर होम्स स्पोक ऑफ हर, जब कभी होम्स आयरन एडलर की चर्चा करता, बात करता, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सम्मान, आदर के भाव से ही उसकी चर्चा करता था, आदर के साथ में। शी वॉज ऑलवेज द वुमेन, वो उसको सम्मान, मतलब एक द वुमेन, ये अपने आप में एक महिला के प्रति उसका ये रिस्पेक्ट था। महिला तो थी लेकिन चैलेंजर थी, लेकिन चैलेंजर होने के बावजूद भी उसके प्रति उसका रिस्पेक्ट था। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी, थर्ड क्वालिटी है। फोर्थ, नीड्स अ गुड फ्रेंड। देखिए चौथी क्वालिटी में हमने ये पॉइंट लिया है कि शेरलॉक होम्स को एक अच्छे दोस्त की हमेशा आवश्यकता रहती थी, वो उसको तवज्जो देता था। इवन दो, यद्यपि होम्स वर्क इज सिक्रेटिव, होम जो था वो एक डिटेक्टिव था, डिटेक्टिव होने के नाते उसका जो काम था वो बड़ा सीक्रेट से भरा हुआ होता था। ही स्टिल नीड्स अ गुड फ्रेंड, लेकिन फिर भी उसको एक अच्छे दोस्त की हमेशा उसके काम में उसके साथी के रूप में आवश्यकता होती है, विच हेल्प्स हिम विथ हिज मिस्ट्रीज, जो उसकी मदद करता है उसकी जो गुत्थियाँ मिस्ट्रीज होती हैं उनको सुलझाने में। इन द स्टोरी होम्स अलॉन्ग विथ हिज ट्रस्टफुल फ्रेंड वॉटसन tries to unravel the riddle regarding the hidden letters and photograph of the king of Bohemia. इस लेसन में भी, इन द स्टोरी, इस कहानी में, होम्स जो है अलॉन्ग विथ हिज ट्रस्टफुल फ्रेंड, अपने विश्वसनीय दोस्त जिसका नाम वॉटसन होता है, उसके साथ मिल करके ट्राइज टू अनरेवल द रिडल। रिडल का मतलब होता है पहेली, गुत्थी, ठीक है, रिगार्डिंग द हिडन लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द किंग ऑफ बोहेमिया। किंग ऑफ बोहेमिया से संबंधित जो हिडन लेटर्स और फोटोग्राफ थे, जो
आयरन एडलर ने छुपा के रखे थे, जिसके आधार पर उसने किंग को डरा रखा था, उसको निकालने के लिए, उसको छीनने के लिए उसने अपने मित्र वाटसन का सहारा लिया था। तो नीड्स अ गुड फ्रेंड, और उस पर उसको पूरा भरोसा भी होता है। और लास्ट, फिफ्थ, एन आर्टिस्ट। मैं कहूँगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, वह एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव तो था ही वॉज अ गुड आर्टिस्ट टू। वह एक अच्छा बढ़िया आर्टिस्ट भी था, कलाकार भी था, एक अभिनेता भी था, अभिनय भी करना जानता था, अलॉन्ग विथ बीइंग अ डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होने के साथ साथ में। दिस क्वालिटी मेड हिम हाईली सक्सेसफुल एंड फेमस। और यही जो उसकी क्वालिटी थी कि वो डिटेक्टिव होने के साथ साथ में बड़ा अभिनय भी अच्छा कर लेता था, आर्टिस्ट भी था, इसी के कारण ही उसको इतना सक्सेस और उसका फेम उसको मिला, प्राप्त हुआ। इन द स्टोरी, टू अनरेवल द रिडल, यहाँ पे देखिए ये रिडल की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है, RIDDLE है, ठीक है, ये जो यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में है ये सही है, रिडल। ही डिस्गाइजेस ट्वाइस, इस कहानी में भी जो गुत्थी होती है, रिडल जो होती है, उसको सुलझाने के लिए वो 2 बार छद्मवेश धारण करता है। डिस्गाइजेस ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, डिस्गाइज का मतलब होता है छद्मवेश धारण करना। 2 बार वो छद्मवेश धारण करता है और अच्छा अभिनय करता है। फर्स्ट एज अ कैब ड्राइवर, पहली बार वो एक कैब ड्राइवर के रूप में, एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में, एंड सेकंड एज अ प्रीस्ट, और दूसरा एक प्रीस्ट के रूप में, वहाँ एक पादरी के रूप में वह छद्मवेश धारण करता है, ताकि कुछ जानकारी या महत्वपूर्ण वो जुटा सके, ठीक है। तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी था। तो इस तरीके से इन 5 पॉइंट्स में हम शेरलॉक होम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए फिर से इसको पढ़ लेता हूँ। डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ शेरलॉक होम्स। Sherlock Holmes is the protagonist in the story, having the following qualities. First, intelligent. He at once recognized the King of Bohemia, who himself was pretending to represent a second person during his visit to Sherlock Holmes, seeking help in getting the letters and photographs back. Second, famous detective. He was a famous detective, as the King of Bohemia hires him to get himself out of the trouble. Also, Irene Adler had been told that the king would probably go to Sherlock Holmes for help in getting the photograph back. Third, respect for challengers. Irene Adler had been one of the few persons who had been proven to be just as clever as Sherlock Holmes. She was an outstanding challenger. Whenever Holmes spoke of her, it was in terms of great respect. She was always the woman. Fourth, needs a good friend. Even though Holmes' work is secretive, he still needs a good friend which helps him with his mysteries. In the story, Holmes, along with his trusted friend Watson, tries to unravel the riddle regarding the hidden letters and photographs of the King of Bohemia. And last, an artist. He was a good artist too, along with being a detective. This quality made him highly successful and famous. In the story, to unravel the riddle, he disguises twice, first as a cab driver and second as a priest. So thank you viewers for watching the video. I hope आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिए, बार बार सुनिए, सुनने से जल्दी याद हो जाएगा आपको, और फिर इसको दोहराइए। और हाँ, जैसा मैंने आपको कहा था, इन 5 क्वालिटीज़ के अलावा भी अगर आपको कोई क्वालिटी शेरलॉक होम्स में नज़र आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिखना न भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।